लेकिन उससे पहले मोबाइल एकदम डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको चार्ज किया। Which page number will begin? Page number 7. 128. 120. The last paragraph. Okay. Last paragraph. Good. Let me open book on this and let me mute all of you. I will unmute only one student so that we can have the interaction. एक ही बच्चे को अनम्यूट रखेंगे ताकि इंटरेक्शन हो पाए। चलो ईशांत अनमोल को ईशांत। Yes sir. You are always on the roof. तुम हमेशा छत पर ही रहते हो। तुम हमेशा छत पर ही रहते हो। No sir. Sir, in the room, in my room, there is not coming network properly, so I come sometimes at the terrace. Okay, which team you use generally? Boda. Boda, that's right. I use over here in the school area. Geo works very fast. Geo works nicely. So I usually take classes from Geo. When I switch it to Airtel, it doesn't work properly. Raj, are you sleeping? सो रहे हो क्या जी? No sir. एकदम मुंह कान सुखा कर बैठे हो, लग रहा सो रहे थे। घर में कोई मारा पीटा है क्या? No sir. एकदम चुपचाप। ये 7A का भी क्लास लिए थे और वीडियो रेडी पर वो टाइटल डाल। Okay, let me open book GSC. Chapter 12. There is chapter 12. Chapter 12. कहाँ है chapter 12? Yes. Yeah, I have got chapter 12 here. Page number 1. Yes. Let me make it large so that you may understand in a proper. Okay, any problem? No sir. Yes, you said something to say, Raj. You said anniversary. Yes, I am. Yes. You want to ask something? कुछ पूछना है क्या? No sir. No sir. Sorry, बोल रहे थे anniversary. Sir, my father was saying who is there now. Okay. So I have changed my profile. Okay. Now see, how is biodegradable garbage useful? Biodegradable garbage is the useful क्या? इसका इस्तेमाल क्या? Useful. We found out in the above activity that biodegradable waste rots completely in some days and mixes with the soil. कल ही मैंने समझाया था कि बायोडिग्रेडेबल वैसे कचरे को बोलते हैं, वैसे
गार्बेज को बोलते हैं, जो मिट्टी में पूरी तरह से सड़ गल करके फिर मिट्टी बनती है। ठीक है, Yes, sir. this is called composting. So we found out in the above activity that biodegradable waste rots completely in some days and mixes with the soil. This is called composting. तो सड़ गल करके फिर वो जो मिट्टी मिल के मिट्टी बन जाता है तो उसे कंपोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसे? Composting. कंपोस्टिंग। So this is the definition of composting. अगर कोई पूछे what is composting, so you may say like that. Okay, when biodegradable waste rots completely, rots मतलब सड़ जाना, when biodegradable garbage or biodegradable waste rots completely in some days and mixes with the soil, this is called composting. जब बायोडिग्रेडेबल कचरा मतलब वैसा कचरा, वैसा गार्बेज जो सड़ गल करके हो जाए, उसे कंपोस्टिंग बोलते हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम्हारे घर से आ रही है? Ishant, sir, Ishant. ईशांत को ये करना पड़ेगा, ये लड़ रहा कि पढ़ रहा? चलो ईशांत को। So we found out in the above activity. The above activity means earlier in the last class. Yesterday I think I had taught. कल जो हम पढ़ा था वो एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी से ये पता चला कि सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है वो समझ गए ना तुम लोग? Yes, sir. तो बताओ तो what is biodegradable? Tell me about biodegradable. What is biodegradable and what is non biodegradable? Tell me first. Sir, biodegradable when waste rots in soil and mixes when waste rots in soil in 2-3 days and it mixes with soil is called biodegradable. Okay, and non biodegradable? When the waste cannot rot in soil and remains at the same condition, it's called non-biodegradable. Very good. So all of you understood biodegradable and non-biodegradable. So now, just now we have understood about the composting also. So अभी हम लोग composting के बारे में ही समझे. So in forest, composting takes place naturally. जंगल में क्या होता है कि कंपोस्टिंग ऑटोमेटिकली होता है। नेचुरली मतलब ऑटोमेटिकली, खुद अपने आप। खेत वगैरह में किसान उसको खुद से करता है, लेकिन जंगल वगैरह में किसान तो पहुंचता नहीं, तो वहां नेचुरली। Some farmers also prepare compost. कैसे हम बताते हैं? जैसे सर, हाँ बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? जैसे कि पेड़ पौधा है, ठीक है, अब उसका पत्ता जो है सूख करके गिर गया, अब गिर गया, उसको वहां पर उठाने जंगल में तो जाता नहीं कोई आदमी वगैरह वगैरह, तो वो पत्ता सूखा वहां पड़ा रहा, और फिर उसके बाद बारिश वारिश हुआ, वहीं पर सड़ गल गया, और वहीं पर सड़ गल करके उस मिट्टी में मिल गया, और मिट्टी में सड़ गल के मिलने के बाद वो बन गया कंपोस्ट, हो गया, सिंपल। ठीक है। यस सर। So in forest, composting takes place naturally. इसलिए जंगल में composting खुद ब खुद होता है naturally. Some farmers also prepare compost and use it in the field to grow crops. और कुछ किसान जो है खेत में खुद से कंपोस्ट तैयार करते हैं। कंपोस्ट का हिंदी में मतलब होता है खाद। खाद देने से फसल सब्जियां जल्दी लहलहा जाता है, तुरंत बढ़ता है। तो कोई भी चीज हम लोग खाते हैं आजकल सब खाद पर, गोभी, सेम, टमाटर, कोई भी फल सब्जी, सब खाद पर, और खाद वाला चीज वैसे उतना ठीक होता नहीं। कंपोस्ट मेक्स सॉइल फर्टाइल बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स टू। और कंपोस्ट जो है मतलब खाद जो है वो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब उसको पोषण देता है और वो बढ़ता है। इसलिए फल, सब्जी, किसी भी चीज का हो, पेड़ पौधा, वो जल्दी से जो है बढ़ जाता है। This reduces the need to use artificial fertilizers. इसके वजह से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर मतलब जिसको इंसान बनाया है, वो कीड़े मकोड़े को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स को बोलते हैं, तो वो खाद हानिकारक होता है सेहत के लिए। उसमें केमिकल्स वगैरह होता है। अगर उसका छिड़काव किया जाता है कीड़ा मकोड़ा जो पौधे में
गोभी के पत्ते में या सेम का पेड़ हो, पौधा हो, कद्दू का, किसी भी चीज का हो, वो सब मुझे लगता है वो नहीं छिड़काव किया जाता तो उसमें जहर रहता, तो वो ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो फिर हम लोग खाते हैं, कितना धो लो कुछ ना कुछ अंश अंश रह जाता है। फिर उसको पकाने के बाद वो गर्म होता है तो कितना सब उसमें भी मर जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंश रह ही जाता है, तो वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। कंपोस्टिंग उतना नुकसानदेह नहीं, तो इसलिए कंपोस्ट का यूज ज्यादा करने से जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होता है। यू मस्ट हैव हर्ड, तुमने जरूर सुना होगा कि पेज में, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स, तुमने जरूर ऑर्गेनिक फूड के बारे में सुना होगा। तो ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? These are grown only with the help of manures and without any use of fertilizers. ऑर्गेनिक फूड उसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक फूड जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, दीज आर ग्रोन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैन्यूर्स, मतलब खाद, नेचुरल खाद जो होता है, मैन्यूर्स खाद, एंड विदाउट एनी यूज फर्टिलाइजर, एनी यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और केमिकल का जो छिड़काव होता है वो नहीं होता है। इस तरह से जो भी फल सब्जी उगाया जाता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कभी कुछ नुकसान करेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। जैसे क्लास में समझाते वैसे एकदम यहाँ भी ध्यान से समझा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं ताकि सबके समझ में आए। कंपोस्टिंग कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ वर्म्स। कंपोस्टिंग जो है ये वर्म्स के जरिए भी होता है, जमीन में छोटा छोटा रेंगने वाला जो वर्म्स होता है। सच टाइप ऑफ कंपोस्टिंग इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो इस तरह का जो कंपोस्टिंग होता है इसको वर्मी कंपोस्टिंग है। उसमें क्या होता है, जैसे कि सूखा पत्ता या कुछ भी मान लो जमीन में गिर गया है, तो वो सड़ने गलने से पहले ही छोटा छोटा जो वर्म्स होता है, कीड़ा मकोड़ा, वो खाने लगता है पत्ते को। उससे जो कंपोस्ट तैयार होता है उसे वर्मी कंपोस्टिंग है। तो कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग का डेफिनेशन दोनों याद है। So here we have got the definition of vermicomposting. Composting can also be done with the help of worm. Such type of composting is called vermicomposting. अगर हम पूछे what is vermicomposting, तो ये एक लाइन में आंसर बोल सकते हो, ठीक है? एक लाइन में आंसर बोल सकते हो कि those composting which is done by with the help of worms are called vermicomposting. या ये लाइन भी बोल सकते हैं यहाँ से, composting can also be done with the help of worms. Such type of composting is called vermicomposting. Care should be taken that no animal products such as meat waste, milk waste, and oil is added to the composting pit as it leads to growing of harmful microorganisms. मयंकेश्वरी, अभी तुम डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, देखो ड्राइंग करना शुरू कर दिया। ड्राइंग क्यों कर रहे हैं मयंकेश्वरी? Sir, my sister was doing. Sir, taking mobile. अभी अभी तुमको ही पीटेंगे सिस्टर, लगेगा तुमको छोड़ी, कोई भी करेगा लगेगा तुमको, याद रखो। क्लास में भी डिस्टर्ब करता है, हंसते रहता है, यहाँ भी डिस्टर्ब करता है। कहाँ है सिस्टर? दिखाओ तो सिस्टर, झूठ बोल रहा, वहां पर कोई है भी नहीं, दिखाओ कहाँ। चलो अब एक्टिविटी में आते हैं हम लोग। To make a vermicomposting pit, a pit is dug into the ground and a layer of sand is put at the base. वर्मीकम्पोस्टिंग पिट कैसे बनता है? पिट मतलब होता है गड्ढा, तो वर्मीकम्पोस्टिंग बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है। A pit is dug into the ground and a layer of sand is put at the base. और वो गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर सबसे पहले बालू भरा जाता है। The sand is covered with dry leaves, weeds और stalks of plants, और फिर उस बालू को जो है निर्वा वगैरह से ढक दिया जाता है।
The pit is kept moist by sprinkle some water. अब फिर उसमें पानी का छिड़काव करते रहें. Worms are added to it and they are fed on vegetable peels, dry leaves, crushed eggs, shells and weeds. फिर उसके अंदर कुछ कीड़े मकोड़े को किसान लोग छोड़ता है और फिर उसके अंदर जितना फल सब्जी है उसका छिलका, सूखा पत्ता, कुचला हुआ अंडा वगैरह वगैरह सब डाला जाता है और फिर सारा कीड़े मकोड़े को मिल जाता है भोजन, वो लोग मजे से खाता है और तैयार होता है वर्मी कंपोस्टिंग. They change the waste into manure within 3 to 4 weeks. और ऐसा करने में 3 से 4 सप्ताह लगता है. This manure is excellent for growing plants. 3 से 4 सप्ताह में एक बेहतरीन मैन्योर मतलब खाद तैयार होता है और फिर उसका छिड़काव फसल पौधे में किया जाता है तो फसल और पौधा बहुत ही अच्छा होता है. तो ये एक्टिविटी था जिसमें कंपोस्टिंग पिट कैसे बनाया जाता है. वर्मी कंपोस्टिंग पिट क्या किया जाता है? ढका नहीं जाता है वो. एक गड्ढा किया जाता है, बालू दिया जाता है, फिर बालू को नेलवे से ढका जाता है, फिर कुछ कीड़े मकोड़े को छोड़ा जाता है. उसके बाद फल का छिलका और सूखा पत्ता निर्वा वगैरह वगैरह सब डाला जाता है और 4 सप्ताह लगता है और रेडी हो जाता है एक्सेलेंट मैन्योर, तो बेहतरीन खाद तैयार फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, अच्छा पौधा बनाने के लिए. तो ये किसान लोग के लिए फायदेमंद चीज है. तो कोई आर यू लिसनिंग? इसलिए राज सुन रहे हो? Yes. ये ऑटोमेटिकली क्लास डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन. चलो जल्दी सर से. पीठ को ढका नहीं जाता है. क्या हो जाता है? सर वो गड्ढा को ढका नहीं जाता है. अरे वही तो बोल रहे हैं, उसको फिर ढका जाता है इससे, क्या बोलते हैं, मतलब सूखा पत्ता निर्वा जंतु वगैरह वगैरह ये सब से ढका जाता है. ठीक है. यस सर. चलो अब गार्बेज मैनेजमेंट देखो. मैनेजमेंट का कोर्स होता है. अब यहाँ गार्बेज मैनेजमेंट, कूड़े कचड़े का मैनेजमेंट कैसे करें. गार्बेज मैनेजमेंट भी होता है, होटल मैनेजमेंट होता है ना, यस सर. उसी तरह से यहाँ भी गार्बेज मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे. गार्बेज मैनेजमेंट में 3R का इस्तेमाल किया है. RRR. वैसे RRR राजा मौली की एक मूवी भी आई है साउथ की, बाहुबली का डायरेक्टर उसको बनाया. RRR. तो यहाँ 3R का मतलब क्या है, वो आर मूवीज मत समझ जाना. ये R का मतलब है रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस. तो गार्बेज मैनेजमेंट किसी को कहते हैं. गार्बेज मैनेजमेंट 3R का नाम, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज. इसको पढ़ते हैं. Plastics, glass, and metals objects have too many uses in our lives, but when they are discarded, they eliminate in nature. These non-biodegradable wastes are very harmful for the environment, so need to reduce non-biodegradable waste. We can do this by following 3 R's. ये कहा गया है कि प्लास्टिक जो है वो सड़ता गलता नहीं है, तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है. तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको घटाने के लिए, कम करने के लिए 3R का इस्तेमाल करना. सबसे पहला है रिड्यूस. रिड्यूस मतलब कम करो. प्लास्टिक का इस्तेमाल जो भी करते हो एकदम कम नहीं के बराबर करो. We should try to reduce the use of plastic. Use fountain pens in place of disposable ball pens. Do not use polythene bags. Use jute or cloth bags instead of paper napkins. Use washable cloth napkins. मतलब प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके बदले कागज का बना हुआ, कपड़े का बना हुआ, ये सब का यूज करना चाहिए. ये तो पहला R का मतलब. अब रीयूज. Find alternate use of discarded things. Use the empty cold drink bottles to carry water. At home, empty jars and bottles can be used to store dry foods and spices in the kitchen. The empty cans can be used as pots for small plants. अब छोटा छोटा जो टीन का ढक्कन हो गया या प्लास्टिक का ढक्कन हो गया या बर्तन टाइप का जो हो गया, कितना लोग उसमें कुछ होता है तो उसको फेंक देता है.
तो कहा गया है कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि छोटे छोटे चीज के लिए, जैसे मसाला रखने का कुछ बना लिए, या the empty cans can be used as pots for small plants, और छोटे छोटे पौधे का गमला बना देना चाहिए, मतलब उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये बॉटल है, Yes, sir. पुराना पुराना होगा, कितना लोग इसको फेंक देते। अब इसी में हार्ट अटैक आता है ना एक लोगों पर, उसमें बहुत सारी चीज बताया जाता है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना, मतलब रीयूज करना चाहिए, बर्बाद हुए वाली चीज को यूज क्या। ओके, अच्छी। Sir, please give us some projects also. हाँ देंगे, टेंशन नहीं लेना। तो रीयूज मतलब किसी भी चीज को हम लोग उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकिल metals, plastics and glass metals are picked from the garbage and then again reprocessed to make new things. This is called recycling. Recycle. For example, old plastic bottles are recycled to make polythene bags. Similarly, old papers are recycled to make recycled paper. However, paper and plastics cannot be recycled repeatedly. So it is very important to minimize their use. It is very important for us to follow the 3 R's, even though it may become uncomfortable at times. Remember, our resources are limited, and if we do not use it wisely now, the earth will become a big garbage yard in the future. अब इसमें कहा गया है कि रिसाइकिल भी करना चाहिए, मतलब किसी भी चीज का दोबारा यूज करना चाहिए, और ऐसा नहीं करने से लास्ट में अर्थ एक बहुत बड़ा कूड़े और कचरे का ढेर हो जाए। वैसे भी अभी कहीं भी निकलो, कहलगांव या भागलपुर या कहीं भी, हर जगह कूड़ा कचरा गंदगी भरा है, पता नहीं। Yes, sir, केलगांव में है। तो भाइयों और बहनों, और बहनों के भाइयों, आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, इतना सा, ठीक है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Okay, sir. क्योंकि सुबह से कंटिन्यूसली क्लास ले लेके बोल बोल कर मेरे सिर में और आंख में दर्द हो रहा है। लैपटॉप पर बैठे से लैपटॉप भी पूरा डिस्चार्ज हो गया। ये लैपटॉप बोलने से याद आया, इसको चार्ज में लगाते हैं जल्दी। मोबाइल डिस्चार्ज होता है, मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, लैपटॉप डिस्चार्ज होता है तो फिर लैपटॉप को चार्ज में लगाते हैं। दिन भर यही कर रहे हैं। अब ये लैपटॉप को चार्ज में, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, क्लास को एंड करेंगे। यश कुमार ने हाथ उठाया। यश कुमार बोलो, क्या बात। यश कुमार, अरे चेहरा तो दिखाओ। तो चेहरा दिखाने का 21 रुपया लेगा क्या? सर अभिनव जयदेव स्माइली लगाया है, खड़ूस वाला। नहीं है यहाँ। यश कुमार, चैट बॉक्स में हाथ उठाया और जब अनम्यूट कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा। चलो एक बार में सबको अनम्यूट करते हैं। चलो सबको अनम्यूट कर दिए, बोलना है। बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। कुछ पूछना है किसी को? आरव प्रकाश, दिया यादव, दिया यादव, अवय प्रसून, सिमरन सांडिल्य, मौलिसी, वीरेंद्र नायक, अभिनव, आदित्य राजपूत। किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग यू हैव टू आस्क? ओके, नो नो वन। सर। ओके, बाय।
Bye, Bye, sir. sir.